Hello, good afternoon, HIBSC students. Today I am going to start our last unit, unit number 4, soft skill for effective interpersonal communication. Our unit number 3 is already over. Now, so let's start. Just a minute. Effective listening. It has been observed that human beings spend more time listening than speaking. It is a skill that most used by all of us, but we get little training in this. On the other hand, right from our school days, we are formally trained in all other three languages skills, namely speaking, reading, and writing. It is primarily so because listening is usually taken for granted while attending the lecture or talk. Some of us listeners just tune out or get caught up in the internal dialogue trying to translate a specific word or think of something more interesting happening somewhere else outside the room. This probably explains These probably explain why listening is considered as one of the stressful tasks. The fact that makes successful listening is the all more challenging. यहाँ पे ऐसे बताया गया कि जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉम आवर स्कूल डेज वी हैव द हैबिट ऑफ लिसनिंग. ओके. हमारे स्कूल डेज से हम लिसनिंग जो हमारी हैबिट है पर लिसनिंग हम सुनते हैं लेकिन जो लिसनिंग होता है हमारा इतने में उतना हमें ट्रेनिंग नहीं मिला है क्योंकि हमें सुनने की आदत ज़्यादातर नहीं है बिकॉज वी हैव ओनली थ्री स्किल लैंग्वेजेस दैट इज स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग. वहाँ पे हमको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है तो लिसनिंग स्किल हम जैसे बोले कि थोड़ा सा उस पर टास्क या स्ट्रेसफुल टास्क हो जाता है हमारे लिए क्योंकि we consider as a listening as a stressful task. If someone is trying to speaking or someone is talk to with us, that at that time we most probably we ignore him. If we have beneficial for that, then we are going to listen. Otherwise, not at all. Research has also established that human beings can speak at the rate of about 150 words per minute, whereas human brains can process 570 words per minute. So रिसर्च के हिसाब से यहाँ पे human beings can speak 125 and 150 words, but the brain captures the 570 words per minute. So this means that we are able to use just 25% of our mind power and 75% is left unused while we listen to others. Consequently, most of us are more interested in the speaking than listening to others. Yes. So, in the name of listening, what the people do the most of time of hearing. That listening and hearing, that is the different thing. Importance of listening. Effective listening requires both deliberate efforts and keep the mind keen mind. To improve your communication skill, you must learn to listen effectively. Effective listening gives you an advantage and makes you more impressive when you speak. It also boosts your performance. The Greek philosopher Epictetus commented on the importance of effective listening by saying, we have two ears, one mouth, so that we can listen twice as much as we speak. But what happens in the real life? We speak too much and we listen less. Thus, effective listening is not only the skill, but it is a discipline that achieve when adding the patience and concentration act of hearing. Yes, as much as we listen, that it added the patience and concentration of hearing. That listening is the significant part of communication process. Communication cannot take place until and unless the message is heard and fully retained thoroughly and positively by the receivers and the listeners. Listening is a dynamic process. Listening means attentiveness, interest, perceptible
in the posture as well as the expression. Listening implies recording, translating and the symbols into the meaning and interpreting the message correctly in the communication process. तो लिसनिंग हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन जैसे हो ही नहीं सकता बिना विदाउट लिसनिंग। कि अगर हम लिसनिंग की बात करें, लिसनिंग प्रोसेस की बात करें तो उसमें अटेंटिवनेस होना बहुत ही ज़रूरी है और पोस्चर और एक्सप्रेशन होना भी ज़रूरी है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल जब हम क्लास में पढ़ाते हैं आपको तो हमें समझ में आ जाता है, क्योंकि आपको क्लास कितना घंटे का आपका एक क्लास होता है, 45 मिनट 50 मिनट। ओके, तो उतना ही हमको इतना टाइम लिमिट दिया जाता है, टाइम बाउंड दिया जाता है कि उससे ज़्यादा बच्चों की कैपेसिटी नहीं होती है। तो लास्ट लेक्चर में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल सुबह से आप लेक्चर में बैठे हैं, तो लास्ट लेक्चर में बच्चे क्यों डिसअपियर दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी लिसनिंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। लिसनिंग डिफर्स फ्रॉम द हियरिंग। लिसनिंग और हियरिंग में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो ट्रक रोलिंग बाय ऑन द रोड इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस वुड बी जस्ट हर्ड एंड नॉट टू लिसन। कि जैसे हमने हमारे सामने से रोड पे से एक ट्रक गुजर रहा है, तो वो लिसनिंग का पार्ट नहीं होगा, वो हियरिंग का पार्ट होगा। फ्रॉम अवर द एग्जाम्पल वी कैन thus say that what is listening and what is hearing. Hearing implies just perceiving sound. Hearing implies just perceiving the sound, while listening means listening. तो जैसे हियरिंग मीन्स जैसे ऊपर ऊपर की हमें जो आवाज़ सुनाई देती है तो उसको हम बोलते हैं हियरिंग। एंड लिसनिंग मीन्स लिसनिंग विथ अंडरस्टैंडिंग वॉट एवर यू आर गोइंग टू लिसन। जैसे हम म्यूज़िक सुनते हैं तो हम जब म्यूज़िक सुनते हैं उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। both body as well as mind is involved in the listening process. Okay, the listening is an active process while hearing is an passive activity. Hearing is an effortless activity while listening is an act requiring conscious effort, concentration and interest. Listening involves both physically and psychologically. कि जब हम लिसनिंग की बात करते हैं तो उसमें साइकोलॉजिकली और फिजिकली हमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट हमें वहाँ पे होना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल हम जब लेक्चर अटेंड करते हैं, कोई भी लेक्चर अटेंड करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट का लेक्चर अटेंड करते हैं, तो वहाँ पे फिजिकली भी तो हम प्रेजेंट होना चाहिए और साइकोलॉजिकली भी हमारा प्रेजेंट होना चाहिए। तो ज़्यादातर हमें बच्चों में कैसा दिखाई देता है, बच्चे फिजिकली तो बैठे हैं, बोर भी हो रहे हैं, दिखाई भी दे रहे हैं एक्सप्रेशन पर से, लेकिन जो हम बोलते हैं कि साइकोलॉजिकली माइंड होता है वो कहीं और पे घूम रहा होता है। द फीचर्स ऑफ गुड एंड इफेक्टिव लिसनर। Good and effective listeners tries to give maximum amount throughout the speaker's ideas being communicated, leaving the minimum amount of the time for the mental exercise to go off the track. The good listener is one who यहाँ पे गुड और फीचर क्या क्या फीचर्स है कि फॉर एग्जांपल जब हम गुड लिसनर्स बनते हैं या इफेक्टिव लिसनर बनने की कोशिश करते हैं तो वो क्या होता है कि वो स्पीकर के जो आइडिया होते हैं वो कम्युनिकेट हमसे होते हैं कि वो उसमें कितना नॉलेज फुट फुट के भरा हुआ है। ओके, वो देता है हमें मिनिमम टाइम देता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम देता है। जो मेंटल एक्सरसाइज के लिए वो ट्रैक पे लाने के लिए मेंटल एक्सरसाइज होते थे। कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारा माइंड एक जगह कभी कंसंट्रेशन ज़्यादा देर तक नहीं रहता, तो जितना भी स्पीकर हम बोलते हैं कि जब हम गुड लिसनर बनते हैं तो उससे हमारा क्या होता है कि हमारी मेंटल एक्सरसाइज हो जाती है। तो गुड लिसनर कैसे बन सकते हैं आगे हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए।
ओके, तो सबसे पहले पॉइंट रहता है इज अटेंटिव. गुड लिसनर मस्ट पे अटेंशन टू द की पॉइंट्स. ही शुड बी अलर्ट. ही शुड अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन. कि जब हम गुड लिसनर बनने की कोशिश करते हैं तो उसको क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है उस पर ध्यान देना चाहिए, और जो डिस्ट्रक्शन होता है कि किसी वजह से, तो उसको अवॉइड करना चाहिए. डू नॉट अज्यूम. गुड लिसनर डज नॉट इग्नोर द इंफॉर्मेशन ही कंसिडर इज अननेसेसरी. कोई भी जो इंफॉर्मेशन होती है तो उसको वो अननेसेसरी उसको कंसिडर नहीं करता है कि कोई काम का नहीं है. ही शुड ऑलवेज समराइज द स्पीकर्स आइडिया सो दैट देर इज नो मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द थॉट्स ऑफ द स्पीकर. कि वो जब ज़्यादा से ज़्यादा वो जो सुनता है तो उसकी वजह से क्या करता है कि वो स्पीकर के आइडिया को समराइज करता है, तो जिसकी वजह से उसका जो फॉर एग्जांपल जो स्पीकर के जो मिसअंडरस्टैंडिंग कि उसको उसके जो थॉट्स है उसको समझने को उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए. ही अवॉइड्स द प्री मैच्योर जजमेंट अबाउट द स्पीकर्स मैसेज. कि उसका प्री जजमेंटल जो आइडिया होगा या जजमेंटल आइडिया वो अपने दिमाग से निकाल देगा कि जैसे ये ऐसा बोल रहा है तो वो ऐसे ही बोलेगा, ये स्पीकर अभी ऐसे बोलेगा, ऐसा कोई जजमेंटल वो आइडिया अपने दिमाग में नहीं रखेगा. दूसरा है लिसन फॉर द फीलिंग्स एंड फैक्ट्स. क्यों सुनना चाहिए, तो गुड लिसनर डेलिबरेट लिसन फॉर द फीलिंग्स एंड द फीलिंग्स ऑफ द स्पीकर. कि जिस तरह से हम जब अपनी जगह पर बैठते और कोई बोल रहा है और उसके बोलने में गलती हो गई तो हम उसकी गलती निकालते रहते हैं, उस पर हंसते रहते हैं, लेकिन कभी हमें भी सोचते हैं कि अगर उसकी जगह हम भी होते तो हमसे भी ये गलती हो सकती है. सो ही कॉन्सेंट्रेट टोटली ऑन द फैक्ट्स. He evaluates the facts objectively. He keenly observes the gestures, facial expression, body language of the speaker. In short, good listener should be projective. One who tries to understand the views of the speaker. कि जो गुड लिसनर होगा वो कभी किसी स्पीकर का मजाक नहीं उड़ाएगा. क्यों नहीं उड़ाएगा, क्योंकि शायद शायद जो स्पीकर हो तो शायद फर्स्ट टाइम इफ ही or she is delivering the lecture for the first time, that the listener will not pass any kind of comment, because if he is a good listener then he will understand the feelings, that fear, that expression, gesture of that body language of that particular speaker. Concentrate on the other speaker kindly and generously. तो यहाँ पे गुड लिसनर कैसे बनेंगे, the good listener makes deliberate efforts to give a chance to the other speakers also to express their thoughts and views. कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़्यादातर ऐसा होते हैं कि ज़्यादातर हम जब ग्रुप में बोलते हैं तो हम ही ज़्यादा बड़बड़ बड़बड़ करते हैं. तो जब वो जो गुड लिसनर्स होते हैं तो वो दूसरों को बोलने का चांस ज़रूर देते हैं, जिसकी वजह से दूसरों के थॉट्स भी हमको पता चले. ही इवैल्यूएट द स्पीकर्स आइडिया इन द स्पेयर टाइम. तो उसकी वजह से कि जिसका सोच कैसा है, किसका सोच कैसा है, किसका आइडिया कैसा है, तो जब हम उसको सुनते हैं तभी हमको पता चलता है वो इंसान किस टाइप का है. अपॉर्चुनिटीज. The good listener tries to take benefit from the opportunities arising. He asks, "What is in it for me?" तो जो गुड लिसनर्स होता है तो ऑलवेज ही फाइंड द अपॉर्चुनिटी इन द स्पीकर्स थॉट कि ये मेरे लिए कौन सा अच्छा है, अभी इसमें मेरी कौन सी अपॉर्चुनिटी आएगी या मेरे लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी बेस्ट होगी. उसके बोलने से जब उसके बोलने से जो मुझमें थोड़ा सा फर्क दिखाई देता है या उसने क्या बोला, उसका वो ज़्यादा महत्व वो बन जाता है, वो किसी को भी इग्नोर नहीं करेगा. स्टेप फॉर इफेक्टिव लिसन. इंटेंट टू लिसन. Make listening goal of conversation. Hearing comes naturally. Listening is an active skill that involves a full engagement of listeners' concentration. तो जो हम लिसनिंग पार्ट और हियरिंग पार्ट की बात करते हैं तो जैसे हमने आगे डिफरेंस देखा, एक्टिव लिसनिंग है और उसको हम और इफेक्टिव बनाने के लिए कि जो हम हमारा एक साइकोलॉजिकली और फिजिकली हमारे इन्वॉल्वमेंट उसमें होना चाहिए. देन बी पेशेंस. हमें सुनने की आदत बहुत ही कम है कि हमारे पास पेशेंस ही नहीं है. बी माइंडफुल ऑफ इंक्लाइनेशन टू डिबेट द पॉइंट और ऐड द क्लैरिफिकेशन. कि जितना हम ज़्यादा सुनेंगे उतना हम ज़्यादा क्लैरिफाई होंगे. कि हम फॉर एग्जांपल जैसे घर में भी हम लोग बोलते हैं कि कभी झगड़ा होता है तो उसने क्या बोला, जब झगड़ा होते हैं तो हम उसकी बात को बोलने ही देते नहीं, बोलने ही नहीं देते, आगे बोलने ही नहीं देते उसको.
हम उसके बाद को आधे ही काट देते हैं, या कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है बीच बीच में बोलना। लेकिन जब हम पेशेंस होते हैं, बी पेशेंस, हमें पेशेंसफुल रहना चाहिए। जितना हम ज़्यादा सुनेंगे उतना हम ज़्यादा अपने आप में इम्प्रूवमेंट करेंगे। रेजिस्टेंस और जॉब जंप इन एंड टेक ओवर द कन्वर्जेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किस बीच बीच में बोलने की जो आदत होती है वो। इंस्टेड द फाइल दिस थॉट्स अवे टू ब्रिंग अप एंड अप्रोप्रिएट टाइम। उसकी वजह से क्या होता है कि जो हम बोलते हैं ना कि जो अम, अ, एक माहौल तैयार होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे हम अच्छे से सुनते हैं कि कोई भी, फॉर एग्जांपल कोई भी जो हम बोलते हैं कि अगर हमको गाना गाना है, तो जब हम उसके वर्ड्स बार बार सुनेंगे, तभी उस वर्ड्स का मतलब हर बार उसका अलग हमको समझ में आएगा। लेकिन आप एक ही बार में जो गाना पूरा सुन चुके हैं, उसको आप वैसे का वैसा रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका उसमें साइकोलॉजिकली और फिजिकली उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। मेंटेन द आई कॉन्टेक्ट। आई कॉन्टेक्ट शोज द स्पीकर दैट यू आर एंगेज इन द कन्वर्सेशन। यस, कि जो आई कॉन्टेक्ट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। उसकी वजह से क्या समझ में आता है कि हाँ, जो स्पीकर है वो ऑडियंस में एंगेज हो सकता है, एंगेज है, उसकी कन्वर्जेशन में एंगेज है। आइडेंटिफाई द इमोशंस, बी वॉचफुल फॉर क्लूज टू द इमोशंस बिहाइंड द स्पीकर्स वर्ड, that correctly acknowledging the speaker's emotion will show you that you understand what is being communicated while not necessarily agreeing or disagreeing. तो जितना हम जितना ज़्यादा गुड लिसनर होते हैं, तो उतना उतना ज़्यादा हमें स्पीकर के बॉडी लैंग्वेज पे से पता चलता है कि उसके जो वर्ड्स हैं इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, उसके वर्ड्स के पीछे उसके इमोशंस क्या है, ये हमको डायरेक्टली समझ में आता है। जिससे हमें वो हम उनसे एग्री है या नहीं, उस बात पे हम उस पे हम बात कर सकते हैं। एक्नॉलेज द स्पीकर, लेट द स्पीकर नो यू आर फॉलोइंग हर विथ नोट्स, short phrases that echo without directly repeating. तो एक्नॉलेज द स्पीकर, जैसे हम स्पीकर बोलता है, इफ वी आर नॉडेड अवर हेड्स, then the speaker understand, speaker can understand, yes, we are going to listen him, or we are going to listen her properly. So there is no need for repeating on the part of on the part of speaker. Show interest in addition to eye contact, display the body language signifying your full engagement by learning forward and keeping your body posture open. तो जब हम इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं, तो जब हम आई कांटेक्ट की बात करते हैं, तो उसके साथ आपका बॉडी लैंग्वेज भी उतना ही आपका जो पोस्चर होता है, जो खड़े रहने का, या एंगेजमेंट आपकी कितनी एंगेजमेंट है, उसका कन्वर्जेशन में कितना एंगेजमेंट, वो दिखाई देता है। देन व्हाट्स मिसिंग, देन what's missing means sometimes what's missing conveys more information than what is being said. Be mindful of the words and emotions that are missing or inconsistent. कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम बोलते हैं लेकिन कुछ वर्ड्स हमको याद नहीं है, कि अगर कुछ वर्ड्स याद नहीं आ रहे या कुछ बोला ही नहीं जा रहा है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा हम कॉन्शियस होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल कि उसके लिए कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हेन द अप्रोप्रिएट क्राफ्ट जेंटल क्वेश्चन टू प्रॉब दिस एरिया, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, बी माइंडफुल ऑफ द वर्ड्स एंड इमोशंस। ये वर्ड्स एंड इमोशंस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। जो मिसिंग और इनकंसिस्टेंट होते हैं, कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा बोलूँ पागल, तो पागल में, या शायद मैंने किसी का एक्सपीरियंस किया है, या ये वर्ड मैंने बार बार सुना है, या थोड़ा सा हम बोलते हैं कि ज़्यादातर ये वर्ड्स मेरी लाइफ में रिपीट हो चुका है, या किसी ने मुझे बताया है, तो उसकी वजह से ये हम बोलते हैं कि उसके इमोशंस उसके साथ जुड़ा हुआ है। ओके।